now. So we had started this chapter linear equation in two variable. Then we discussed many other things, like then we discussed the introduction and methods of solving. Like we discussed what type of equations are there, what is the standard form of linear equation, what are the simultaneous linear equations, that what is the simultaneous linear equation. If I'm having a pair of linear equation, then it will be called as a simultaneous linear equation. Then we learned about the solution. What do I mean by the solution of a pair of simultaneous linear equation? So we found that this point where both the graphs are intersecting, this point will be called as the solution of the linear equation, right? Because we know that the linear equation का जो graph होता है, that is a straight line, and there are infinitely many solutions of one equation. But if I'm having a pair of linear equation, then in that case I will have three conditions possible. One condition will be when the lines are intersecting, and that is a unique solution case. The second condition will be the of no solution case, where the lines are not intersecting at all. And the third condition will be where the lines are overlapping, and this will be a case of infinitely many solutions. Infinitely many solutions means every a value of x and y which is satisfying equation number one, that will satisfy equation number two also. For example, here if I'm taking x equal to 1 and y equal to 3, the first equation is being satisfied. If I'm taking x equal to 1 and y equal to 3, here also it is satisfying. 2 into 1 plus 2 into 3, which is equal to 8. So here also it is being satisfied. So what सर I हाँ बोलिए. सर हम ऐसा कह सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो कि मतलब जो दो इक्वेशंस हमें दी है सर वो दोनों एक ही फॉर्म की है, मतलब एक्स वाई प्लस The equations are identical. You can say that the equations are, see, we will discuss the conditions later on कि उन conditions को अपन क्या बोलते हैं. The equations are identical, yes, you can say, but that you have to observe, that you have to say by observation कि हाँ भाई ठीक है, ये दोनों equation identical है. आप इन दोनों equations को देख के कह सकते हो कि सर ये दोनों equations identical हैं. कैसे आइडेंटिकल है सर? दूसरी वाली इक्वेशन को ऊपर वाले में से टू कॉमन, ऊपर वाले से में से टू कॉमन ले लो, या दूसरे वाले को टू से मल्टीप्लाई कर दो, द इक्वेशंस विल बी आइडेंटिकल. नेक्स्ट वी लर्नड अबाउट, नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट द अबाउट द elimination, solving the pair of linear equation by substitution. Solving the pair of linear equation by substitution. So substitution means क्या होता है? Wait, somebody is saying something. Why not? Why not x and y? Value of x and y can be negative, not a big deal. But the thing is, the x and y should satisfy the whatever value of x and y you are taking, that should satisfy the equation. Satisfying the equation means if you will put the value of x and y, then your left hand side should become equal to right hand side. If your right hand side is 0, then your left hand side must become equal to 0. If it is not, then it should attain any other value. Next is substitution method. Substitution method का मतलब क्या होता है? The action of replacing someone. See this मेथड को जानने से पहले, मेथड को समझने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन. द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स it is the action of replacing someone or something with another person or thing. It is an action of replacing someone or something with some another person or thing. यहाँ पे हम क्या करेंगे? Here what I will be doing is I will be expressing x in terms of y, or I will be expressing y in terms of x, that, and then I will substitute that x in my another equation, and then I will do the needful. Okay, next is let us move ahead. Okay, so this is the meaning of substitution. अब substitution का meaning तो बहुत देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं. By what do I do in this method? First of all,
first of all, either I will find x in terms of y or I will find y in terms of x. दोनों में से कुछ भी कर सकते हो. Either you can calculate x in terms of y or you can calculate y in terms of x. Then after doing this, what you do is जो भी आपका x की वैल्यू मान लो y के टर्म्स में आई, उसको आप दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करो, y की वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर उस y की वैल्यू से x की वैल्यू कैलकुलेट करो. अभी जब आगे एग्जांपल्स करेंगे देन आई विल टेल यू. द नेक्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. अब इस मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड द कोफिशिएंट ऑफ y इन बोथ द इक्वेशंस आर सेम एंड हेंस वी कुड एलिमिनेट y बाय सब्ट्रैक्शन. मान लो अगर आपके पास इक्वेशन इस तरीके से दिया है कि सर 3x प्लस y इज इक्वल टू से 7 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus y is equal to say 3. Now what you will do is, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है. अगर क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन, तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा. बट यू कैन ऑल्सो डू, what you can do is you can subtract the two equations. This is equation number 1, this is equation number 2. Subtract कर दो first minus second. What will happen? This will 3x minus 2x, तो आपको मिल जाएगा x, और y minus y, its sign will change, it will become minus y. So y minus y will become 0, or 7 minus 3 will become 4. So from here I am getting that the value of x is equal to 4. From here I am getting the value of x is equal to 4. ठीक है? So this is a method of equating the coefficients. The next method that we have is cross multiplication method. Now listen, this method was removed from the CBSE syllabus last year. Okay, but currently there is no guidelines from CBSE whether this method will be there or not. So we will be dealing with this method, and we will be dealing with this method, and we will be solving lot of questions based upon this method also. अब बाद में रिमूव कर दिया तो रिमूव कर दिया. आई कांट वेट टिल नवंबर कि सीबीएसई की गाइडलाइंस आएंगे और फिर वो बोलेंगे कि दिस सिलेबस हैज बीन रिमूव. नो, आई कांट वेट लाइक दिस. नाउ सी, इस इक्वेशन मैंने कल आप लोगों को बताया था कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग एनी इक्वेशन. एक मेथड तो होता है कि सर 3x plus 2y इज इक्वल टू 5, और एक मेथड हुआ 3x plus 2y minus 5 is equal to 0. दोनों बातें सेम है, लेकिन हमारा जो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है that is ax plus by plus c equal to 0. So my dear friends, I will be going with this method only. I will be going with this nomenclature only. आपको भी क्या करना है? आपको भी जो भी क्वेश्चंस करने हैं, you have to solve it by this nomenclature only. ax plus by plus c equal to 0. So your standard equation will be a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. अब इसका सॉल्यूशन का तरीका क्या होता है देखो. पहले अपन x लिखेंगे, x divided by will be equal to y divided by will be equal to 1 divided by, यहाँ पे 1 लेना है. जब ये कांस्टेंट का साइन, जब ये कांस्टेंट मेरे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में हो तो उस केस में हम 1 लेते हैं. अगर ये कांस्टेंट मेरा इक्वेशन के राइट हैंड साइड में दिया हुआ है तो उस केस में हम 1 की जगह -1 ले लेंगे. लेकिन चूंकि हमारे केस में मेरा कांस्टेंट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है तो आई विल टेक इट एज +1. नाउ व्हाट आई विल हैव हियर b1 b2 c1 c2. ठीक है, मैंने भी इसको ऐसे ही याद किया था, आप भी इसको ऐसे ही याद करोगे. फिर आपके पास आता है a1 b2. नाउ सॉरी, उसके बाद आपके पास आता है a1 a2 और लास्ट में आपके पास आता है b1 b2. ये क्या किया मैंने बस एक याद करने का तरीका लिखा है. मैं सबसे पहले क्या करूंगा, x के नीचे मैं b और c के कोफिशिएंट्स लिखूंगा. b और c के कोफिशिएंट्स लिखूंगा. that means I will write the coefficient of y, and followed by I will write in the next column I will write the coefficient of c. कांस्टेंट को मैं लिखूंगा. पहले इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के का y कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, फिर सेकंड इक्वेशन का y कोफिशिएंट और कांस्टेंट.
सिमिलरली y के नीचे मैं x के दोनों कोफिशिएंट्स को लिख दूंगा a1 a2 और 1 के नीचे मैं फिर से वापस से b1 b2 लिखूंगा. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सर वापस समझा सकते हो, ये वाला समझ में नहीं आया. एक मिनट रुक जाओ, एलिमिनेशन बाय एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ. फिर मैं क्या करूंगा, मैं पहले b1 b2 को b1 से c2 को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और उसके बाद फिर मैं बाद में क्या करूंगा, उसके बाद फिर मैं बाद में क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा. अब देखो ध्यान से फिर से मैंने क्या किया, मैंने क्या किया सर, मैंने क्या किया सर, मेरे पास जो इक्वेशन है, मेरे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. मैंने क्या किया, मैंने x के नीचे y के दोनों कोफिशिएंट्स को रख दिया, डेट इज b1 b2, और नेक्स्ट कॉलम में मैंने c1 c2 लिखा. यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे b1 डिवाइडेड बाय b2 नहीं है, ये सिर्फ b1 और b2 को मैंने लिखा है. ठीक है, क्यों लिखा है, क्योंकि इसको बाद में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे याद रहेगा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये मेरे को आसानी से याद रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा. b1 b2 लिखा, उसके बगल में फिर मैंने c1 c2 लिखा, फिर मैंने a1 a2 लिखा, और फिर मैंने 1 के नीचे b1 b2 लिखा. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चीजों को मल्टीप्लाई करूंगा. रेड वालों को, जिन एरोज को मैंने रेड, जिन टर्म्स को मैंने रेड से कनेक्ट किया है उसको मल्टीप्लाई करूंगा पहले, और जिन टर्म्स को मैंने ग्रीन से कनेक्ट किया है उससे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. तो मेरे को क्या मिलेगा, देखना ध्यान से, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 will be equal to y upon c1 a2 minus c2 a1, y upon c1 a2 minus c2 a1 will be equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1 will be equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1. ठीक है, ये तो मेरे टर्म्स हो गए जो मैंने यहाँ पे लिखा. अब क्या करूंगा, देखो ध्यान से, ये कुछ पेन में आज इश्यू है तो आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. आई होप इट विल बी फाइन फ्रॉम नेक्स्ट टर्म. आई परचेज्ड अ न्यू पेन सो आई एम नॉट मच यूज्ड टू इट. तो ये मैंने कर लिया. नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज. सो x की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी डेट विल बी हाउ मच, x की वैल्यू आ रही है बेटा, डेट इज कमिंग आउट टू बी b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस ऑफ a2 b1. x की जो वैल्यू आई वो आई b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1. y की जो वैल्यू आएगी सर, ये दोनों वैल्यूज आई x और y की. देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पे ध्यान से, जो x की वैल्यू आई सर, x की वैल्यू आई मेरी, x की वैल्यू आई मेरी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और जो y की वैल्यू आई वो आई a1 a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 और b2 a1 माइनस a1 b2. तो ये जो है मेरे x और y की वैल्यूज आई हैं. ये अभी थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इफ यू विल, ये अभी थोड़ा सा आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इफ यू विल सॉल्व, इफ यू विल स्टार्ट सॉल्विंग by taking some different examples, then definitely you will be able to solve these questions. There won't be any issue. I have solved n number of questions by using these methods only. So these are the three methods that we have discussed. The first method that we have discussed was substitution method. Then we discussed the method of coefficient equaling the coefficient, and the third method that we discussed was the method of cross multiplication. तो आपके एग्जाम में जो भी मेथड आपसे पूछा जाएगा उस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. If no method is being asked,
इफ नो मेथड इज बीइंग मेंशन्ड तो फिर आप जिस मेथड से आप चाहो आप उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस and then we will proceed further. Let us try to solve some questions. Okay, so this was a question that we were supposed to discuss before, but ठीक है चलो अभी discuss कर लेते हैं. The question is saying solve the following linear equation graphically and shade the area bounded by these two lines and y axis. जो बात हम लोगों ने उस दिन भी की थी कि दोनों इक्वेशन को जब अपन ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट मिलेगा डेट विल बी h कॉमा के. h कॉमा के मुझे एक पॉइंट मिल गया. अब h कॉमा के मुझे एक पॉइंट मिल गया. नाउ व्हाट आई विल डू इज ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना है. दिस एरिया आई एम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. अगर इसको मैं ए बी सी बोलता हूं तो ये ए बी सी मुझे एरिया कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, दिस बी पॉइंट इज नॉट ओरिजिन. This B point is not origin. So my dear friends, you can calculate the distance AB. AB की length आप निकाल सकते हो. We can calculate it using distance formula also, and we can calculate it using the concept of 9th standard also. 9th standard का कौन सा concept sir? Sir 9th standard का ये concept कि इस point का जो coordinate होगा वो 0, K1 होगा से, और इस point का जो coordinate होगा वो 0, K2 होगा सर. और चूंकि x कोऑर्डिनेट सेम है तो इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी नथिंग बट k1 माइनस k2. तो ये बेस की लेंथ मिल गई. हाइट मुझे पता है, ये जो डिस्टेंस होगी दो जो y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. सो द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ इनटू k1 minus k2, half multiplied by k1 minus k2 multiplied by this h. This will be your area of the triangle. The area of the triangle will be half multiplied by k1 minus k2 multiplied by h. ठीक है sir? So this will be the area of the triangle. Fine. तो ये तो हो गया भाई, ये तो एक सवाल हो गया that I wanted to discuss with all of you. Again, the next question is you have to solve the questions, these equations graphically, and you have to show that they have no solution. तो इसमें करना कुछ नहीं है भाई, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि both the graphs are parallel to each other. Now if both the graphs are parallel to each other, that means they are not intersecting anywhere. If they are not intersecting anywhere, that means they won't have any solution. So this system of equation has no solution. आगे बढ़ते हैं. Solve using substitution method. भाई ये आ गया सवाल, solve using substitution method. तो चलो solve करके देखते हैं. आप लोग भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूं, एंड फिर अपन देखते हैं, बात करते हैं दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. भाई द क्वेश्चन इज x plus 4y is equal to 14, and that will give me x is equal to 14 minus 4y. Now I will have 7 multiplied by 14 minus 4y minus 3y is equal to 5. तो आगे बढ़ते हैं. 14 7 जा 98. Sir, y equals to 3 and x equals to 2. X is equal to 2. That gives me y is equal to 3. Now when y is equal to 3, so x will be equal to 2. तो यहाँ से मुझे दो वैल्यूज मिली, एक वैल्यू मिली y इक्वल टू 3, और दूसरी वैल्यू जो मुझे मिली है वो मिली है x इक्वल टू 2. So this is the method of substitution that I have to use. मैंने क्या किया, मैंने x की जगह x plus 4y equal to 14 लिख दिया, तो x is equal to 14 minus 4y हो गया. Now
मैंने x की जगह 14 माइनस 4y सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, y की वैल्यू मुझे मिल गई। फिर मैं y की वैल्यू मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो वहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई। अगर आप y की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करते तो भी आपको वहां से x की वैल्यू ही मिलती, और वो भी एकदम करेक्ट मिलती। इस बात से एकदम घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ने y की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट किया, अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देता तो क्या होता। ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे बेकार के ख्याल अपने मन में ना लाएं आप लोग। अब इसी क्वेश्चन को अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से तो कर दिया, एलिमिनेशन से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है सर, और हम लोग 7 से मल्टीप्लाई। एक मिनट रुक जा बेटा, दूसरा दिया हुआ है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। आपने बोला कि सर इसको 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। मैं बोल रहा हूँ 7 से मल्टीप्लाई मत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो और अच्छी लगे तो करो। जरूरी नहीं है कि मेरी बात आपको अच्छी ही लगे, आप अपनी बात जो आपने बोला वो भी आप कर सकते हो। देखो मुझे प्लस 4y और माइनस 3y दिख रहा है, तो प्लस 4y और माइनस 3y दिख रहा है तो मेरे को लालच आ रहा है। मेरे को क्या लालच आ रहा है सर? सर मैं एक काम करूंगा, मैं इसको तो सर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और नीचे वाले को सर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर सकता हूं? कर सकता हूं जील? यस सर। मैंने पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई Yes, किया, मैंने दूसरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 28 प्लस 3 होता है। प्लीज 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 म्यूट योरसेल्फ। 28 प्लस 3 होता है 31x, 28x प्लस 3x होता है 31x, sorry 28x plus 3x will be equal to, now 14 into 3 कितना होता है सर? What is the value of 14 into 3? Tell me fast. 42. हाँ 42. 42 42 42 plus 20 is 62। तो सर यहाँ से मुझे मिला सर 31x is equal to 62। तो इससे मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल गई सर? x की वैल्यू 2 मिल गई। इस वाली इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? y की वैल्यू सर हमें मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 3। x की वैल्यू 2 मिल गई, y की वैल्यू 3 मिल गई। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन हो गया। x की वैल्यू 2 मिल गई, y की वैल्यू 3 मिल गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक मेथड और है सर 28x प्लस क्या लिखा है सर? 28x प्लस 3x लिखा है बेटा। सर वो कैसे आया? वो कैसे आया? पूरी रामायण बीत गई, तुम पूछ रहे हो कि सीता किसकी बेटी है। 3 इंटू एक्स किया तो 3x हुआ, 4 इंटू 7x किया तो 28x हुआ, 28x प्लस 3x करेंगे तो कितना आएगा? 31x आएगा। हाँ सर। हाँ सर। क्लास में पढ़ते वक्त इधर उधर मत सोचा करो, कितनी बार तुमको समझाया है। तो यहां से मुझे x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू मेरे को 3 मिल जाएगी। ठीक है, और तो कोई नहीं है जिसको ये डाउट हो रहा है कि सर 28x कैसे आया, 3x कैसे आया? भाई हो तो पूछ लो। इसी क्वेश्चन को आई विल सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन